today's Insta Live session, which is not only important but very vital for understanding of a very debatable, I would not say controversial, but a debatable issue, because there are so many wrong notions around it. There are lots of misconceptions around this issue. Yes, you are right. We are talking about the LGBTQ community. And we have invited Dr. Surbhi Mitra to join us today, and I'm just waiting for her to join. You know what? A recent suicide note of a young gay influencer really shocked and startled me. And why it happened? Because he faced brutal social media bullying and trolling and humiliation, and it took a toll on his health, and he committed suicide. And a young, harmless life was lost only because of our societal perceptions. And that brought me to think that we really need to have open conversations around this topic, open conversations around this topic. We need to break barriers, we need to break these societal stereotypes, and we must create a safe and inclusive space for everybody in the society. Don't you agree? uh, I can see her online, Dr. Surbhi. I've invited her again. Let me tell you my story. I'm a doctor and I have to confess this today online. Yes, she's here. Hello, Surbhi. Hello. Hi. Thanks for joining Oh us my and God, what is accepting my happening? invite to be here on this Insta Live session. Thank you so much for inviting me, and I'm very glad to, co-host it with you. I'm glad myself. We've been planning this for the longest time and finally it's happening. Yeah, true. Yeah. So, Surbhi, I was just telling, and I have to confess today in front of you, I'm a doctor myself, and I feel ashamed to say that I myself had so many wrong notions and misconceptions about this entire community. And Yeah, I feel terrible that we used to crack jokes and we used to make fun. It's so terrible to feel that now, because I did not know the meaning of LGBTQ plus. I thought it's abnormal. I did not even know the meanings of the acronyms associated with them. Oh, we lost her. I think she will join again. And that really made me to think that अगर ये हाल एक डॉक्टर का है तो बाकी लोगों का तो क्या ही होगा. We are doctors, we think that we know everything about science, but we still are quite illiterate in this matter. And that's why I absolutely. thought that we really need to have open discussions, and open communication with experts in the field. And that's why we thought, let's do this Insta Live, so that all should have the basic understanding about this entire thing. Friends, let me introduce Dr. Surbhi Mitra very briefly. She has a very impressive CV, but I'll be very short and crisp. What really matters, she's a very renowned psychiatrist of the city, and she's a celebrity in her own right. She is also a PhD scholar in child and adolescent psychiatry. She is a petitioner in the equal marriage rights case, which is being filed in the Supreme Court. And she also runs her own channel, Mind Matters, where they discuss a lot of a huge range of psychological issues. But along with this, I would like to tell a little bit about her personal side, because it is relevant to today's session. In December 2021, her partner Paromita Banerjee and she had a Mukherjee, commitment ring ceremony. Mukherjee. Pardon me? Paromita Mukherjee. Oh, I'm sorry. Please, I beg your pardon. Sorry, Paromita, if you're online and if you're listening to us. So they both had a commitment ring ceremony, which unfortunately they could not call as an engagement ceremony. And now very soon they want to get married and call each other wife and wife. But unfortunately, they will have to call that a civil union, because in India it is still not legal to have weddings, and that's why they have filed this petition in the Supreme Court to grant equal rights to same-sex marriages. Am I right, Surbhi? Yes, yes. So who else but Surbhi to have with us for this Insta Live on breaking the barriers, the stereotypes around the LGBTQ community? Surbhi, may I have your opening comments on this, please? Yes. So, thank you so much for again, like inviting me for talking on this topic. So, I have talked about this topic on various occasions, on various platforms with multiple types of people. Like I have spoken in front of medicos, in front of the common public, in front of the LGBTQI community itself, and also many other platforms like legal platforms, because we took certain sessions for the lawyers as well, for the Right, judges as well. So we right. also took another session for the police people, the people who
who are supposed to actually save us from the clutches of, say, for example, a family which is probably harming a child from the LGBTQI spectrum, or from the common man, or from, a lot of people come with the complaint that they have been molested or raped just because they identified as somebody from the LGBTQI. So we had to take multiple sessions with multiple types of people, with multiple people of different professions. And so far, so good. We have been quite successful in doing it in and around Nagpur. And we keep doing these live sessions as well, go on YouTube, talk about it, go on like Instagram, Facebook, etc. So we do that as well. So as much as possible, we try to bring in the crowd even from all over India to discuss about this. So as far as I go, I think it has been since like almost like 4 years that I have been constantly advocating things about this, and I have been talking about this openly. So yeah, Yes. it has been a good experience. In a lot of ways, people's myths have been bursted. A lot of people ask questions regarding that, and I really hope that I could help them. And even in today's session, we hope that we can address their issues Right. or help them And know we should be what it able is to change exactly about. at least perspectives of few people, if not all. Yes. Yeah. So let's dive into the topic straight away. Bringing to that the basic question: once a child baby is born, we either call it a male or a female. So we know the gender identity. Then what's this whole thing about this sexual identity or sexual orientation? Can you just clear the air around this? Yeah. So SOGI, that is sexual orientation and gender identity. So these two are absolutely different things, and they should not be compared or confused with. Okay. uh, कुछ लोगों ने ये लिखा है कमेंट्स में कि उनको हिंदी में जानना है, तो मैं Let's दोनों do में a थोड़ा mix थोड़ा, of that. हाँ या चलेगा, हम हिंदी में करते हैं, हम हिंदी में करते हैं. इंग्लिश में करेंगे Correct. ताकि सबको Yeah. समझ सके. Yeah. तो Yeah. बेसिकली Yes. जो आपने जेंडर की बात की, तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले नर्स आके या डॉक्टर आके दे कॉन्ग्रेचुलेट द पेरेंट्स एंड से कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लड़का हुआ है या कॉन्ग्रेचुलेशन आपको लड़की हुई है. एंड सपोज फॉर एन एग्जाम्पल एन इंटरसेक्स इज बॉर्न, तो बहुत मायूसी छा जाती है पूरे परिवार में कि हमारे घर पे तो इंटरसेक्स हो गया, आप कैसे करेंगे. एंड बहुत बार उनको आकर जो किन्नर कम्युनिटी है या जो हिजरा कम्युनिटी है वो उठा के लेके चली जाती है, चली जाती क्योंकि है. पेरेंट्स के वो अनवांटेड बच्चा होता है. लेकिन किन्नर कम्युनिटी उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती है, उसको अपने बच्चे जैसा पालती है और बड़ा करती है. लेकिन ये हो गई आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी, दैट इज कि आपका सेक्स क्या है, जो डिफाइंड होता है आपके लिंग से. इसका मतलब जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स है या रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स है, उससे आपका सेक्स डिफाइन होता है, Yes. मेल, फीमेल या इंटरसेक्स. Correct. ठीक है. लेकिन जेंडर आइडेंटिटी बहुत डिफरेंट चीज होती है. जेंडर आइडेंटिटी मतलब मैं खुद को क्या करके पहचानती हूँ या पहचानता हूँ. Correct. ओके. Correct. तो हो सकता है कि मैं एक फीमेल के शरीर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ मेल. Correct. अंदर से मेरी जो रूह है, वो जो आत्मा है मेरे जो मन है, वो एक आदमी का है. और मेरे को आदमी, इसको हम जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं. जैसे कि गलत बॉडी में पैदा हो जाना, ये फीलिंग आना कि मैं गलत शरीर में हूँ और मुझे ये शरीर से निकल के वो शरीर में जाना है जो मेरी जेंडर, जिस चीज से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ या करती हूँ. Correct. ठीक है. और अगर ये नहीं हो सका तो उसकी वजह से होने वाला डिस्फोरिया मतलब उसकी वजह से होने वाला डिप्रेशन, एंजाइटी, मल्टीपल चीजें जो होती है. क्योंकि ऑब्वियसली आप दिख तो सामने एक फीमेल रहे हो, तो सब आपको शी हर करके प्रोनाउंस यूज करेंगे. सब आपको मतलब आपके लैंग्वेजेस में शी हर करके ही बुलाएंगे, लेकिन आप अंदर से तो ही हो. तो ये जो होता है कॉन्स्टेंटली कि आपको एड्रेस कैसे किया जाता है, आपको देखा कैसे जाता है, वो चीज से होने वाली तकलीफ, उसको हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं. और जेंडर आइडेंटिटी आपकी इस केस में हो गई एक मेल की. सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि आप मेल बॉडी में पैदा हुए हो पर आपकी जो रूह है, आत्मा है, मन है, वो किसी फीमेल का है. इसलिए आप फीमेल जैसे ही बिहेवियर रखते हो, फीमेल जैसे लंबे बाल रखना, चूड़ियां पहनने का शौक रखना, बिंदी पहनना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप वगैरह करने की इच्छा रखना, Correct. कपड़े वैसे पहनना, चलने का स्टाइल एक फेमिनाइन होना, हील्स पहनना ज्यादा अच्छा लगना, Right. ये सारी जो चीजें होती है, तो इसमें भी आप
ये इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके शरीर से डिफरेंट रह सकती है। Correct. And that's और आते हैं अब where the सेक्सुअल sexual orientation. ओरिएंटेशन। Yeah. सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आप सेक्सुअली किस पार्टनर से अट्रैक्टेड हो, तो उसका आपका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज लेना देना टू डू विद दी सामने वाले का शरीर, कि सामने वाले की सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक लड़की इज अट्रैक्टेड टू अ लड़की, तो उसे हम कहेंगे सेम सेक्स ओरिएंटेशन। ओके, एक लड़का इज अट्रैक्टेड टू अ लड़का, तो उसका भी हो गया सेम सेक्स ओरिएंटेशन। तो इसमें आती है दो चीजें, हेटेरोसेक्सुअलिटी एंड होमोसेक्सुअलिटी। हेटेरोसेक्सुअलिटी मतलब आप अपने से अलग सेक्स रखने वाले इंसान से अट्रैक्ट होते हो, जैसे मेल अट्रैक्टेड टू अ फीमेल एंड वाइस वर्सा। होमोसेक्सुअलिटी, होमो का मतलब है सेम, तो इसका मतलब है सेम जेंडर से या सेम सेक्स से अट्रैक्ट होना। ठीक है, इसमें बायसेक्सुअलिटी भी आती है, जिसका मतलब एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसको दोनों सेक्सुअल सेक्स से अट्रैक्शन हो, मेल से भी अट्रैक्शन हो, फीमेल से भी अट्रैक्शन हो। ओके, लेकिन इसमें पैन सेक्सुअलिटी भी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि उनको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से अट्रैक्शन हो, लेकिन उनका ये जरूरी नहीं है कि उनका रोमांटिक अट्रैक्शन सबसे रहे। ओके, अब इसमें आते हैं, जैसे हो गया अपना डिसाइड हो गया मेल एंड फीमेल, ये तो बाय हो गए, दो चीजें मतलब बाइनरी, इसलिए बायसेक्सुअलिटी। लेकिन इसमें इंटरसेक्स लोग भी आ गए, इसमें ट्रांसजेंडर लोग भी आ गए, जिनके बारे में हमने पहले बात की, जो एक सही बॉडी में नहीं है, दूसरे शरीर में है। Correct. तो पैनसेक्सुअल्स जो है वो इनमें से किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसमें Correct. तो फिर एक और टर्म आती है एसेक्सुअलिटी। एसेक्सुअलिटी मतलब जिनको किसी से भी कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशनल बॉन्ड्स या रोमांटिक बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते। दे मे हैव इमोशनल एंड रोमांटिक बॉन्ड्स, बट दे आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू एनीबॉडी। तो ये चीजें Okay. So होती in हैं। homosexuality, meaning a girl getting attracted towards a girl, there is no gender dysphoria in these cases. Like you said, नो, they don't feel trapped. They are basically, she's a girl but attracted to a girl. यस, So gender identity and sexual identity is the same, तो but this जेंडर attraction is आइडेंटिटी towards the दोनों same की sex. फीमेल ही है, Okay. सेक्स Okay, I got it भी now. दोनों का फीमेल ही है, बट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। Okay, okay. Now I got this concept. So दूसरा कॉमन क्वेश्चन सबके मन में कि ये तो एबनॉर्मल है, ये सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, ये फैंटेसी है एंड सो मेनी अदर मिथ्स। सो फिर ये हो क्यों रहा है ऐसे? बिकॉज हमको तो लगता था, हमने कभी सुना ही नहीं था, फिर ये सडनली कहाँ से आ गया? इज दिस एन राइट, एबनॉर्मलिटी? सबसे पहली चीज तो ये एबनॉर्मलिटी नहीं है, और यही चीज हम चिल्ला चिल्ला के सबको समझाना चाह रहे हैं, बहुत डेकेड से चल रही है ये चीज कि यस, प्रोबेबली दिस इज एबनॉर्मल, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक फिजिकल करेक्ट। डिसऑर्डर है। यू नो कुछ लोग बोलते हैं कि हार्मोन ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ऐसा होता है, यस, कुछ लोग बोलते साइकोलॉजिकल हैं कि डिसऑर्डर है। दूसरे, जी, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मिनरल्स विटामिन का ऊपर नीचे होने से भी हो सकता है। मतलब अपने अपने सब लोगों ने गेसेस मार के रखे हैं, बट ऐसा कुछ यस, भी नहीं है। जादू टोना हुआ तो है, ब्लैक मैजिक हुआ है। यस, 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 या एंसेस्टर का कोई पाप था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऐसी बहुत चीजें रहती है, लेकिन द रियलिटी इज कि Yeah. दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल फेनोमेना which occurs in almost all the species on this planet. तो Okay. जैसे we are human beings, तो हमको फोर ब्रेन है, हमको एक अच्छा सा दिमाग दिया है भगवान ने, इसलिए हम एक चीज को नाम दे सक रहे हैं, हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं, Mm-hmm. राइट? बट ऑल्सो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स एंड पीपल विद ब्रेन, we have identified at present recognized more than 1500 species who commonly practice homosexuality, अच्छा। very commonly. एंड उनकी जो है, मतलब उनकी जो सोसाइटी बोल सकते हैं, बट अपन तो हमेशा अपने सोसाइटी की बात करते हैं, बट एनिमल्स की भी तो अपनी अपनी सोसाइटीज होती होगी ना। तो Yes. उसमें दे आर नॉट फ्राउंड अपॉन, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर नॉट फ्राउंड अपॉन, Okay. मतलब वो अलाउड है। कोई किसी को जेल में नहीं डाल रहा है उस वजह से, कोई किसी को नाम नहीं रख रहा है उस वजह से। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दी ओपन, जंगलों में हो रहा है, रास्तों पे हो रहा है, सब तरफ हो रहा है। तो इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। दूसरी चीज क्यों होता है जो, फिर? होता हाँ, क्यों है? दूसरी चीज यही है कि बहुत सारी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करने में अभी हमने देखी है। जैसे अच्छा। कि
जैसे कि ऐसे कहते हैं कि फीटल ब्लड में ऐसे कुछ मेल हॉर्मोन्स है जो ज्यादा रहने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फीटस कमिंग आउट एज अ होमोसेक्सुअल और आइडेंटिफाइंग मतलब एज अ बच्चा होमोसेक्सुअल। जब माँ के पेट में है तभी? तभी से, जी, ओके। तभी से। सेकेंडली, जैसे हम कहते हैं ना हर चीज का कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर होता है, हम्म। वैसे इसमें भी जेनेटिक्स का फैक्टर होता है। तो हम्म। जैसे आपके फैमिली में अगर कोई है, say for example identifying as a lesbian or a gay or a transgender, इसका मतलब ही ये है कि आपके घराने में भी या आपके एंसेस्ट्रल, अगर आप फैमिली ट्री कभी बनाओगे अपना पुराना जा जाके, तो आपके इसमें भी कोई ना कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट किया होगा, ऑल्दो अच्छा, छुपे सो छुपाए जेनेटिक अपनी फैक्टर जिंदगी है। रहा होगा। यस जेनेटिक यस, फैक्टर है। एब्सोल्युटली ओह, जेनेटिक फैक्टर है। अच्छा, तो ये तो उनको पता शायद नहीं था। बेचारों को उस एज में छुपे छुपाए अपनी लाइफ जीनी पड़ती या होगी, हमारे इसलिए वो टाइम तो कभी आउट यही नहीं था, हुए। हाँ, एवरीथिंग वाज हिडन। एग्जैक्टली। So if I say कि I identify as somebody coming from the LGBTQI spectrum, that means very clearly somewhere in two of my families, like my genetic समवेयर। family, somewhere there has to be somebody who has identified like this somewhere sometime. ठीक है। सो एक जेनेटिक लिंक है, दूसरा अगर जब वो माँ के पेट में उसी दौरान अगर मेल हार्मोन की थोड़ी ज्यादा एक्सेस हुई होगी उनकी ब्लड में तो ये हो सकता है। सो ऑल्सो डेफिनेटली एक हम और इसको। फैक्टर आइडेंटिफाई करने में आया है हाँ हाँ। कि जैसे जो ट्विन्स होते हैं, तो जैसे अच्छा। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है उनमें चांसेस कम है, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनमें चांसेस ज्यादा है। जैसे कि जैसे दूसरी भी चीजें देखी जाती है ना कि आइडेंटिकल ट्विन्स में ज्यादा कॉमन होती है, वैसे ही ये चीज भी आइडेंटिकल ट्विन्स में ज्यादा कॉमनली पाई गई है। ओके। सो मतलब इसका मतलब ये कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ना, आर्टिफिशियली उसको बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया देख के या करंट जो फैड है ये कुछ अलग कुछ करके दिखाने का एक्सपेरिमेंट करने के वजह से नहीं होता है। ये ऑफ नेचुरली ही कोर्स अंदर नॉट। से आता है। मतलब नेचुरली अंदर से इमेजिन आता है। करिए ना कि एलजीबीटी क्यू, अगर आप पूरे इन लोगों को देखें, एलजीबीटी क्यू पीपल जिनको हम बोलेंगे, तो इसमें से इफ यू हैव सीन मैक्सिमम लोगों के साथ तो टॉर्चर ही हुआ है, उनको प्रॉब्लम्स यस। ही हुए हैं, इवन राइट? नाउ। इवन टुडे, आज की डेट में भी, ठीक यस। है। तो कोई क्यों इसको इवन एज अ फैशन या ट्रेंड फॉलो करना चाहेगा? चलो मान भी लेते हैं कि इसको लोग फैशन या ट्रेंड बोल रहे हैं, बट वो इंसान तो चाहेगा ना यार, मेरा आई शुड बी बिकम अ हेट्रोसेक्सुअल, या फिर आई शुड बिकम अ पर्सन हु इज नॉट अ ट्रांसजेंडर, मैं अपने ही जेंडर के साथ, मैं अपने ही सेक्स के साथ आइडेंटिफाई करूं, राइट? कोई भी यही चाहेगा। कोई क्यों चाहेगा बराबर। कि मैं जबरदस्ती एलजीबीटी क्यू स्पेक्ट्रम से and बिलोंग करूं, and have a painful traumatic life पेनफुल in the society? ट्रॉमेटिक लाइफ जीऊं बिकॉज ऑफ द सोसाइटी? यस। Yeah. Yes, yes, yes. I got it. Yes. तो coming to the spectrum in itself, because एक मैंने ऐसे एक कॉमेडियन है, उसने बोला, वो खुद एक उस कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो बोलती लोगों को तो इसका नाम भी पता नहीं, मुझे एलजीटीवी बोलते हैं हाँ, instead of यस। LGBTQ. So let's break this acronym for everyone and just tell us briefly LGBTQI meaning, हर एक acronym का क्या meaning है basically? ठीक है, तो आई विल डू इट वेरी क्विकली फॉर यू, Yes, बट दिस yes, इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग बोल देते हैं वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट, सपोर्ट करते भी है आई एम श्योर, बट उन्हें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या है। yes, तो एल yes. मतलब लेस्बियन, ठीक है, एल मीन्स लेस्बियन एंड इट मीन्स अ वुमन हु लव्स अ वुमन और वुमन हु इज अट्रैक्टेड टू अ वुमन। ओके, लेस्बियन, लड़की लड़की से प्यार करेगी। यस, जी, हाँ। ठीक है। अ मेल अट्रैक्टेड टू अ मेल, ठीक है, ठीक। बॉय बॉय, बॉय आदमी बॉय। आदमी, ऐसे भी, ठीक। ठीक है। ओके। देन कम्स एल जी बी, बी ई। मतलब बाइसेक्सुअल, जो मैंने अभी बताया, इट कुड बी वो दोनों जेंडर से अट्रैक्टेड है, नॉट नेसेसरीली रोमांटिकली बट सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ओके। रोमांटिकली मे और मे नॉट बी अट्रैक्टेड, दैट इज अप टू दैट पर्सन, ठीक है। टी, टी मतलब ट्रांसजेंडर, जो मैंने अभी समझा था, तो गलत शरीर में पैदा हो गए हैं और हम्म। उन्हें जेंडर डिस्फोरिया है उसी वजह से, हम्म। और उन्हें अपने सही शरीर में, मतलब सही जेंडर आइडेंटिटी वाले शरीर में ट्रांजिशन करना है, इसलिए ट्रांस वर्ड इसलिए वहां पे आया है, अच्छा, so they ट्रांजिशनिंग want to टू अ मैन। transition. यस। Okay. तो So is अगर it इफ आई common एम, that sorry, I'm sorry, transgender में is it common that a woman is trapped in a man's body? Is it more common or is the vice versa is the same? नो, आई हैव सीन इक्वल केसेस Equal एक्चुअली, आई कैनॉट cases.
हाँ, आई Okay. कैन नॉट से कि ये मैंने ज्यादा Alright, कॉमनली alright. देखा है वो। Because commonly ये लोग जो इनको हिजड़ा ऐसे बोलते हैं, the word is in itself quite not so good. But इस या केस में हम लोग जो commonly देखते हैं, they are all dressed like women. या So we feel they are men trapped in a woman. They are men but trapped in a woman's body. The other way around. What is it या like exactly? या सो इट कुड बी अ मैन ट्रैप्ड इन अ वुमन्स बॉडी और अ वुमन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। Like, but तो अगर commonly we see on कोई सेरेमनीज में आते हैं ये लोग या सिग्नल्स पे मिलते हैं, तो ये लोग बेसिकली कौन है? They are all the community that we see around us in the society. उसमें एक्चुअली यू कैन से कि इंटरसेक्स पीपल आर मोर। Okay. अब इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में क्या फर्क है ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं थोड़ा नहीं क्लैरिफाई वो कर देती ये हूँ। करो प्लीज। इंटरसेक्स मतलब वो लोग होते हैं जो मैंने पहले नहीं बोला कि जैसे आपको नर्स या डॉक्टर आके बोलती है कि आपके घर में लड़का हुआ है, आपके घर में लड़की हुई है, वैसे ही लास्ट में मैंने इंटरसेक्स के बारे में बोला था। इंटरसेक्स मतलब वो लोग हु आर बोर्न विद बोथ द ऑर्गन्स ऑफ बोथ द जेंडर्स। तो बेसिकली उन्हें लिंग भी रह सकती है, उनको योनि भी रह सकती है, दोनों रह सकता है। Externally उनको you can गर्भ see both the things. एक्सटर्नली, यस यू कैन सी बोथ द थिंग्स। इंटरनली अगर देखा जाए तो उनको गर्भ भी रह सकता है, टेस्टिस जिनको हम आदमियों का इंटरनल अंडाशय बोलते हैं वो रह सकता अंडाशय. है, राइट। तो बेसिकली ये दोनों चीजें रह सकती है और इसलिए हम इनको इंटरसेक्स कहते हैं। Okay. आगे चल के दे में आइडेंटिफाई विद एनी ऑफ द जेंडर, इसलिए उनको बड़ा होने दिया जाता है और उनको खुद ही Okay. उनकी जेंडर आइडेंटिटी पर पूछी जाती है कि आपकी जेंडर अच्छा. आइडेंटिटी क्या है। अगर वो कहते हैं कि So what do you मेरी feel फीमेल है, as? Do you feel like a woman or a man? Is what यस you're asked, what the person is asked. यस, Okay. एंड देन लेटर इफ दे से कि मैं आइडेंटिफाई करती हूँ एक लड़की के जैसे, तो हम फिर जो मेल ऑर्गन्स होते हैं उनके वो हटा दिए जाते हैं ताकि फीमेल हार्मोन भी रहे और फीमेल ऑर्गन्स ही रहे। एंड उल्टा अगर रहा, अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मेल, तो मेल ऑर्गन्स रहने दिए जाते हैं, फीमेल Female ऑर्गन्स को. हटा दिए जाते हैं। Okay. तो ये तो So ये इंटरसेक्स इंटरसेक्स हो हो गया। गया. ठीक. लेकिन ट्रांसजेंडर का मैंने आपको क्या बताया था कि उनकी कंप्लीटली बॉडी एक फीमेल की ही होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी फीमेल के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी फीमेल के, एवरीथिंग इज लाइक अ फीमेल, बट दे फील ट्रैप्ड in the female body, and they completely from within feel like a man. Man. They want to dress like a man, they want to behave like a man, you know, all the stereotype चीजें जो men करते हैं सोसाइटी में, they want to do all of that, so they identify with that। इसलिए जब वो ट्रांजिशनिंग के लिए जाते हैं तो भले ही उनकी बॉडी ऑफ अ वुमन है, लेकिन उनका ट्रांजिशन शुरू हो गया टुवर्ड्स अ मैन, तो हम कहते हैं इसको ट्रांस मैन, ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ मैन। Oh, अच्छा. सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, कंप्लीटली मेल बॉडी, एवरीथिंग इज मेल, ऑर्गन्स मेल, एवरीथिंग इज मेल, ठीक है, बट वांट्स टू बिकम अ फीमेल एंड इज ट्रैप्ड इन द मेल बॉडी। तो जैसे So she's मैंने a पहले बताया था, लंबे बाल चाहिए, यू नो, मेकअप चाहिए, स्टीरियोटिपिकली जो एक फीमेल एक फेमिनाइन रोल रहता है सोसाइटी में वो उनको चाहिए, और वैसा ही उनको जीना है, उनको एज अ फीमेल ही इस सोसाइटी में जीना है। तो so she नाउ becomes a दैट trans मैन, woman. यस, इज ट्रांजिशनिंग टू अ वुमन, तो वो ट्रांस वुमन हो गए। Okay. So do these people require surgeries or as well like These intersex people people? require surgeries, those are called SRS, that is sex reaffirmation surgery, reaffirmation अच्छा. surgery। Okay, okay. मतलब मेरा सेक्स का रीएफर्मेशन करने के लिए मैंने जो सर्जरी कराई वो सर्जरी। Okay. और जब चेंज होते रहते हैं, जैसे ट्रांजिशन जब होते रहता है, तब इनको हार्मोनल थेरेपी भी दी दिए जाती जाती है. है, जो दूसरे हार्मोन Alright. का, जैसे हाँ, जैसे फीमेल में ट्रांसफर करना, ट्रांजिशन करना है उनको, तो दे विल टेक फीमेल हार्मोन। मेल में ट्रांजिशन करना है तो मेल हार्मोन्स लेंगे, तो पहले ये देते हैं। इसमें अगर वो कंफर्टेबल है, क्योंकि फिर चेंजेस शुरू हो जाते हैं ना, जैसे इफ अ फीमेल इज टेकिंग मेल हार्मोन्स तो उसको बियर्ड आने लगेगी, शुरू होगा. उसकी ब्रेस्ट छोटी होने लगेगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो भी डेवलप होने लग जाएंगे, चेस्ट हेयर आएंगे, अंडर आर्म हेयर बढ़ जाएंगे, यू नो, ऑल द थिंग्स जो मेल में होते हैं वो सारी चीजें फीमेल में होने लग जाती है ट्रांजिशनिंग के टाइप पे। तो अगर वो इस चीज से कंफर्टेबल है तो ही फिर आगे सर्जरी के लिए बढ़ते किया हैं। जाता है. यस, So when a woman is transitioning, she is becoming a trans man. What happens to their sexual life? दैट्स अ How वेरी how does it वेरी happen? important question। यस, Yes.
क्योंकि सेक्सुअली भी उनको परफॉर्म एज अ मैन ही करना होता है. करेक्ट राइट. राइट. ओनली देन विल दे फील ना कि वो डिस्फोरिया नहीं है उनको, है ना. करेक्ट करेक्ट. तो जब ये होता है तो धीरे धीरे जब हार्मोन्स दिए जाते हैं तो जो क्लिटोरल पार्ट होता है, क्लिटोरल एंड वल्वल पार्ट जो होता है, वो बड़ा होने लगता है, स्टार्ट ओके रिजेंबलिंग लाइक अ मैन. ओके थोड़ा थोड़ा, नॉट कंप्लीटली ऑफ कोर्स. एंड ओके फिर उसके बाद जब वो सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी में क्या होता है कंप्लीटली कि जो उनके थाई मसल्स रहते हैं, थाई मसल्स को लेकर क्लिटोरिस को एक्सटेंड करके थाई मसल्स को लेकर उसके ऊपर एम्बेड किया जाता है. और जो क्लिटोरल जो नर्व्स होते हैं, एक्साइटेटरी जो नर्व्स होते हैं, उसको एक्सटेंड करके ग्लांस पेनिस जो होता है, जो एक मर्द का एक्साइटेटरी टिप पार्ट होता है, उसको टिप तक के एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा नर्व जोड़ के डाल दिया जाता है. एंड अच्छा so that if they want to have an orgasm, they can have an orgasm through that whenever they so this I have. can call it an artificial penis if we can call that so Yeah, but reconstructed penis yeah it's like a reconstructed penis. Yeah, not yeah artificial, reconstructed but penis no reconstructed right penis. it's a Yeah. reconstructed penis so will that penis be able to have a proper erection like a normal man Yes, yes. oh, So all oh those that's things are put, जैसे वो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम वगैरह भी सब कुछ बनाया जाता है ताकि ब्लड का गश हो वहां पे. टिपिकली जैसे फीमेल में एक्साइटेशन में क्लिटोरस में गश होता है ब्लड का, वल्वा में गश होता है ब्लड का, वैसे ही उसी के लिए बड़े दो वेसल्स क्रिएट करे जाते हैं जैसे एक मेल में होता है वैसे ही. एंड उसमें ब्लड का गश होता है, दे गेट एन इरेक्शन. इन फैक्ट अ फ्यू ऑफ माय प्लास्टिक सर्जन फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी कि बहुत बार उन्होंने जब एक ट्रांस मैन की सर्जरी करी है और उसके बाद जब उनको एक सेक्सुअल लाइफ का उनका उनका फीडबैक लिया जाता है एवरी ईयर, तो दे yes हैव almost reported having 72 to 80% normal healthy orgasm as that's compared to fantastic a common मतलब जो already originally एक man है, you know. beauty of So science yes, so in fact when they compared it, they found कि in trans men में तो कुछ percentage orgasms are higher in fact. that's amazing so just for the It's common amazing public what science can do today exactly and what we can I do know as human beings. something which we never imagined ऐसे होता भी होगा and for a trans woman you will create a vagina we create a vagina for them Yes, we create a vagina, we create a urethra, we create a clitoris. yeah Similarly, vulva create yes किया urethra जाता है. clits everything Yeah, yes yes everything is yeah created. so we kind of convert the trans the T acronym of the spectrum Yeah. and फिर now we उसके come बाद to the I Q आ गया तो वो Q तो इंटरसेक्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया. ये I कब आता है LGBTQI हाँ, राइट और प्लस Q I है. अच्छा तो Q मतलब क्या होता है? yeah Q is queer. ठीक है. okay अब जनरली हम क्वियर वर्ड ये इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज क्वियर का अगर आप जनरल मतलब देखो, मतलब डिक्शनरी मीनिंग देखो तो इट्स डिफरेंट, डेविएंट, समथिंग लाइक दिस. तो ये बहुत पहले क्वियर वर्ड आया था एंड हम लोग अभी इसको कॉमनली यूज नहीं करते बिकॉज नाउ एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड प्रॉपरली. बट बेसिकली क्वियर हैज बीन टेकन एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द एंटायर LGBTQI oh स्पेक्ट्रम. is it जस्ट एन अम्ब्रेला टर्म, नथिंग एल्स. तो अगर मतलब so आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं बतानी है, से फॉर एग्जांपल आपको आप एल हो, जी हो, बी हो, पी हो, एस हो, एक्स वाई जेड हो, जो भी हो, अगर आपको नहीं बताना hmm, है तो आप hmm, क्लियरली बोल सकते हो आई आई एम क्वियर. okay एंड देन सामने वाले को आपको बताना है नहीं बताना है आपकी चॉइस. सो यू कैन right जस्ट सिंपली से दिस एंड दैट्स इट, एंड द कन्वर्सेशन देयर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. hmm. क्यू So ऑल्सो queer, nothing इज फॉर specific, but it's an क्वेश्चनिंग. umbrella. अम्ब्रेला टर्म लाइक ब्लैंकेट टर्म जो होता है ना, Covers everything. Yeah, कवर्स एवरीथिंग. covers the entire spectrum. यस. Q also goes for Okay. questioning. That means Oh. I am still questioning my identity. I don't know yet. Mhm. So I'm still Oh, exploring. I'm still okay. curious. I'm in the curious phase, the exploring phase. Transitional phase right now. हाँ, कि अभी मुझे मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ. I am attracted this much percentage to this much percentage to this, because it's a spectrum. You cannot say कि 100% ऐसा ही है किसी के साथ, right? Some person may say कि मैं woman हूँ, but I am 20% attracted to males and 80% attracted to females. So I still become a bisexual person, but the percentage may differ.
सब में से उल्टा, सब में से कि 80% आई एम अट्रैक्टेड टू मेन, 20% आई एम अट्रैक्टेड टू वुमेन. So for these people, marrying a man becomes easier in the society. Correct? True. Yeah. So that's Right. there. Okay. उसके Right. बाद So kind of we covered आई the entire. हाँ. ए जो है लास्ट, ए में सब आ गया. ए सेक्सुअल जो मैंने पहले कवर किया था, नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ द सेक्सेस. उसमें ए जेंडर भी आता है. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. ए जेंडर मतलब अब ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमने अभी डिफाइन कर दिया, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जिसमें ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन आ गए. ठीक है. Right. एक होते हैं ए जेंडर, मतलब वो किसी भी जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, उनकी आत्मा किसी जेंडर की नहीं होती. उनका बोलना है कि हमको ये बाइनरी में डालो ही मत. हम ना मेल है, हम ना फीमेल है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमको एक सीधी जिंदगी जीनी है. दैट्स इट. And they don't have any sexual orientation then? Sexual orientation can depend. I mean, as I said, they are not linked together. ठीक है. Ideally, they may be attracted to the. I mean, sexual orientation उनका वो अपने sexual orientation के हिसाब से डिफाइन करेंगे. अभी अपन जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से ए जेंडर डिफाइन कर रहे हैं. सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो ये सब हो गए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल. ठीक है. Okay. जेंडर कैसे हो गए? मैन, वुमन, ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन, एंड देन वी केम टू ए जेंडर. ए जेंडर या नॉन बाइनरी. नॉन बाइनरी मतलब Non-binary. मैं दोनों भी बाइनरीज, मतलब मेल एंड फीमेल, ये दोनों चीज से मैं आइडेंटिफाई नहीं करता. कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेल जैसा ड्रेसअप होके जाना है, कभी मुझे लगता है कि मुझे फीमेल जैसा ड्रेसअप होके जाना है. यू नो, That is इट a मे gender. वेरी. हाँ, ए जेंडर और नॉन बाइनरी, एज आई सेड. Right. So इसी And के they are साथ में also मुझे थोड़ा called gender fluid. This is another word, gender fluid. कि Okay. मेरा So it's not जेंडर consistent. फ्लूइड है. It's fluid. Yeah. हाँ, Yeah. इट्स फ्लूइड. Okay. Okay. And इसी इसमें मुझे प्रोनाउंस के बारे में बता दो, बिकॉज मुझे भी खुद को कंफ्यूजन होता है, ही, शी, इट, दे, मतलब ये क्या है, कौन सा प्रोनाउन किसको यूज किया जाता है? तो इट तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं. इट वी यूज फॉर अ थिंग. Correct. Okay, like a non-living thing. So that's a complete no-no. Right. बेस्ट है प्रोनाउंस किसी को भी पूछ लेना, अज्यूम ना करके. तो आजकल क्या होने लगा है, आजकल के काफी कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने देखा है कि जैसे आपका टैग होता है ना, नेम टैग होता है, उसमें आपका बाकी सब लिखा रहता है, आपका साइकेट्रिस्ट हो, ये हो, वो हो, उसके नीचे आपके प्रोनाउंस भी आजकल पूछे जाते हैं. Yes, और वो पूछते लिखे हैं. जाते हैं. इसीलिए मैंने पूछा है सवाल. एग्जैक्टली. तो आई born as a female, having my reproductive and sexual organs of a female. Also, Okay. my gender identity is a female. Okay. So my pronouns will be she, her. She, her. Okay. Right? Got it? Yeah. उसके बाद मैन के लिए भी सेम Same. रहेगा. हाँ. born as a man, sexual organ as a Right. Right. man, identifies as a man. तो he, him हो जाएगा. He, Okay. him. अब ट्रांस की बात अगर कर ले, तो जब वो ट्रांजिशनिंग फेज में रहते हैं, बीच के फेज में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम दे प्रिफर दे देम. They, them. दे देम रादर देन ही, हिम या शी, हर कुछ भी प्रेफर ना करते हो कि हम अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो अभी हम दे देम है. बट एक बार कंप्लीट ट्रांजिशन हो गया, तो born as a male but identifies as a female and transitioned as a female may use pronouns of she, her. Similarly, ulta, born as a female, wants to transition to a male, will identify after transitioning as a he, him. तो ये होते हैं. So they, them is applicable only to trans people? No, they can be applicable to even gender fluid people, non-binary people, and agender people, जो हमने अभी बात की. कि जैसे उन्होंने बोला हमारा जेंडर नहीं है, हम जेंडर फ्लूइड है या हम नॉन बाइनरी है, तो वो दे देम करके आइडेंटिफाई करते. गॉट इट. सो बहुत ही क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे ये सब समझ के तुमसे. सुरभि, रियली थैंक यू फॉर दिस. एक्चुअली आई वाज गोइंग टू, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट देयर हेल्थ स्ट्रगल्स, बट हम लोगों ने बहुत सारा हेल्थ स्ट्रगल इसी में कवर कर लिया कि ट्रांस क्या कर सकते हैं और इंटरसेक्स पीपल को क्या हेल्थ स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, ये तो आपने कवर किया. व्हाट अबाउट द अदर स्पेक्ट्रम, द लेस्बियंस, द गेज, व्हाट हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स डू दे हैव टू फेस? Mental health struggles, so definitely there are too many mental health struggles. So beginning
फ्रॉम द बिगनिंग अगर स्टार्ट करें अपन कि जब एक बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे खुद को आइडेंटिफाई करने लगता है, एक्सप्लोर करने लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देयर इज अ लॉट ऑफ इशू इन सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो Okay. क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन का फेज ही इतना लंबा रहता है कि वी आर लिविंग इन अ सिस हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी. अभी व्हाट डज सिस हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी मीन? सिस मतलब we maximally see born as females identifying as females, Right. born as men identifying as female as men. Correct. तो हम उनको cisgender बोलते हैं. Okay, like you are cisgender, I am cisgender. Clear? ठीक है. Now sexual orientation. So you are heterosexual, I am homosexual, right? So यहाँ पे तो आइडेंटिफिकेशन करने में, सेल्फ आइडेंटिफाई करने में, फिर सेल्फ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है. उसके बाद आता है कमिंग आउट का फेज, व्हेन यू आर कमिंग आउट टू पीपल, टू क्लोजेस्ट टू यू. So some people may come out to their best friend, some may come out to their mother if they are close to the mother, some may come out to the father if they are closer to the father, some may come out to their siblings. Depend करता है वो किससे क्लोज है. बट काफी बार इस चक्कर में ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें लगता है कि ये इंसान एक्सेप्ट करेगा और हो सकता है कि वो ना करे. ठीक है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ लव, यू नो दैट योर मदर लव्स यू, योर फादर लव्स यू एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बट वंस दिस एस्पेक्ट कम्स आउट probably they may shy away from it. Probably वो बोले कि अच्छा ये चीज तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी सब ठीक. और कमिंग आउट एक फेज में नहीं रहता, मल्टीपल टाइम्स कमिंग आउट चलते ही रहता है. ठीक है, तो जैसे एक बार मैंने इससे कम आउट हो गया, उससे कम आउट हो गया, उससे कम आउट हो गया, एंड देन मल्टीपल टाइम्स पीपल कीप क्वेश्चनिंग यू, यू नो, वंस यू कम टू अ पर्टिकुलर एज. जैसे हमारे सोसाइटी में 22-25 साल, 28 साल, शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड था ऐसा भी पता नहीं चला, सुनने में नहीं आया, यू नो. देन सम पीपल हैव टू फेक इट, और सम people gradually, you know, then they come out to somebody and then they see कि okay ये person accept करेगा नहीं करेगा. So that is their self acceptance, familial acceptance and societal acceptance. So multiple सबसे बड़ा phases. स्ट्रगल ये है, कमिंग आउट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल दे हैव टू फेस. Yes, because ये कमिंग आउट के जर्नी में ही सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. क्योंकि देखिए एक्सेप्ट हो गया सब कुछ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर एक्सेप्टेंस एक इंसान से भी नहीं है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. और अगर वो एक इंसान अगर आपका बिलीवर्ड इंसान हो तो देन देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. कि व्हाई एम आई, देन दे मे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर ओन आइडेंटिटी एज वेल, कि व्हाई एम आई आइडेंटिफाइंग लाइक दिस. क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं है हेल्थ केयर का, उनको एक्सेस ही नहीं है एक क्वियर एफर्मेटिव साइकियाट्रिस्ट का. तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि मेरे में कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग विद मी, और इसको चेंज करना बहुत जरूरी है. नहीं तो मेरी माँ मुझे एक्सेप्ट करती ही, मेरे फादर तो मुझे एक्सेप्ट करते ही, तो मेरे में क्या ऐसी प्रॉब्लम. तो बचपन से यू नो दैट स्ट्रगल इज देयर. फिर उसके बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बुली हो जाते हैं इस चक्कर में. दे आर बुलीड इन द स्कूल, बुलीड इन द प्लेग्राउंड. ओके, many a times they are bullied at tuition classes, even from the teachers. Teachers may pass bad comments who are not, you know, they don't know about this aspect. Correct. तो मतलब स्कूल में आजकल काउंसलर्स रखे गए हैं, लेकिन बहुत बार स्कूल के काउंसलर्स को भी नहीं पता होता है. तो स्कूल के काउंसलर्स के लिए भी इनफैक्ट एक सेशन लेने का हमारा प्लान चल रहा था, विच वी विल सून. तो ये चीज होती है. उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस बेसिकली सबसे मेन स्ट्रगल लग रहा है मुझे सुन के. यस, बिकॉज सोशल एक्सेप्टेंस ना रहने की वजह से क्या होता है कि बहुत बार छुपे छुपा यही जो मैंने बोला, बुली होना, मोलेस्ट होना, रेप होना, सेक्सुअली अब्यूज होना, फिजिकली अब्यूज होना, उनको मारा पीटी भी बहुत पड़ती है. ठीक है, देन इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज तो चलते ही रहता है. बिकॉज रादर देन एक्सेप्टिंग, इवन आपके घर में, आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है कि आपको गालियां मारी जा रही हो कि तू तो थक्का है, तू तो हिजड़ा है, तू तो गुड़ है, तू तो मीठा है. यू नो, ये सारे स्लर्स मुझे पहले पता नहीं थे आंटी, आपको पता मालूम है. ये सब मुझे धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड यू नो अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन आई हेल्प पीपल, तब मेरे पास जो पेशेंट्स आया, जब मेरे को इतने सारे लोग एलजीबीटी से मिले, इतने सारे लोगों ने फिर मुझे बताया कि क्या क्या ट्रॉमा के साथ वो गुजरे हैं, क्या क्या सुनना पड़ा है उनको. तो ऑल दीज थिंग्स हैपन.
So I would say that बहुत बार मैं ये चीज बोलती हूँ कि LGBTQ is probably people think only meant for the privileged and not meant for the common society, Hmm. which is Yeah. wrong. It is everywhere. It exists everywhere in all socioeconomic strata, in all types of societies, in all types of castes and religions. तो फिर बाद में पांचवा छठवा इसी पे ऊपर मैं आके बोलती हूँ कि कास्ट इश्यूज बहुत होते हैं, रिलीजियस इश्यूज बहुत होते हैं, और अच्छा. इस पूरे दौरान में होने वाले कन्वर्जन प्रैक्टिसेस जो इन बच्चों पे होते हैं, Oh. तो कन्वर्जन प्रैक्टिसेस में इनको लिया जाता है और या तो किसी ऐसी क्वैक के पास या बाबा के पास लेके जाते हैं, और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम आपके बच्चे को ना बदल देंगे, ये ठीक हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये डिजीज नहीं है, ना तो कोई क्राइम है, Correct. तो ये ठीक हो जाएगा, इसको हम बदल देंगे, ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये आती है। So this और फिर इस message चक्कर should में go very strongly in today's session कि ये हो नहीं सकता, ये बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट करना है और इसके बारे में समझ लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, especially that for the parents side, because the new generation is quite, I find my daughter so inclusive and so open to all of this, so that this generation has definitely changed, but our generation maybe we need to do a lot of work on this यस यस for acceptance. Yeah. एब्सोल्युटली। तो राइट. तो जब ये दैट ब्रिंग्स, ये जो तुम बोल रही थी उससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है. वो एक आर्टिकल मेरी फ्रेंड ने ही लिखा था, एंड दिस इज अबाउट हर एक्चुअली. हर फ्रेंड कॉल्ड हर वन डे, शी इज आल्सो अ डॉक्टर, एंड हर फ्रेंड कॉल्ड दिस डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन सेइंग कि मेरा बेटा हैज जस्ट कम आउट एंड कन्फाइडेड दैट he's attracted towards men. He's a boy and he's attracted towards men, and she was simply horrified and she was howling, crying कि कैसे हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे अपब्रिंगिंग में कुछ गलती हो गई क्या, मैंने कुछ खिलाया पिलाया क्या, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तू जल्दी मुझे हेल्प कर. This doctor friend also thought this is an abnormality and needs to be treated, and she called a very famous psychiatrist of Mumbai, and she said ki sir, this is a problem and my son of my very close friend has just come out and confided that he is a gay, and तो उसको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, so I need to bring him to you for counseling. So he just smiled and said ki okay, counseling, bring his parents, या bring his वंडरफुल, parents. So he said the boy doesn't whoever need that counseling. psychiatrist was, wonderful. So that's Dr. Anand Nadkarni, and he said bring his parents and not the child, because it's the parents now require counseling and we need to make them Yes understand this is normal, not acquired. जानबूझ के किसी ने किया नहीं, ये treatable नहीं है, so do not try all those हाँ nuskes, and the best thing is to accept. यस। तो आई वुड लाइक Yes. टू टेल कन्वर्जन प्रैक्टिसेस में होता भी क्या क्या है। जैसे ये बाबा वगैरह जो लोग होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं, Mhm. ये बहुत बार इनको दे केज सच पीपल लाइक एनिमल्स, एज तो जू में है तो केज कर डालेंगे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनको बांध के रखते हैं, दे आर चेन्ड फॉर वेरी मेनी डेज, एंड देन उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, गर्म पानी डाला Oh जाता God. है, उनको सालों सालों तो नहीं, बट दिनों दिनों तक खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, एंड दे आर स्ट्रिप्ड नेकेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, That's horrible. एंड अपॉर्चुनिटी मिली तो दे आर देन अब्यूज्ड ऑल्सो। Abuse also, yeah. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जेनाइटल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए रहते हैं, कुछ लोगों का तो जेनाइटल म्यूटिलेशन हुआ रहता है, some people have been raped multiple times. So God, this is really genital traumatic. mutilation is very common in the LGBTQ spectrum. जैसे एनिमल्स का नहीं करते हैं, जैसे बुल को पकड़ के उसका वहीं पे कैस्ट्रेशन कर डालते हैं पत्थर मार मार के, लिटरली यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं. देयर इज नो एनेस्थेसिया गिवन और नथिंग गिवन, Oh and they God. are just castrated like that. Yeah. And there is no gender bias in this. You will be surprised कि आपको लग रहा होगा कि शायद फीमेल्स का ज्यादा रेप हो रहा है और मेन का कम हो रहा है इसमें. Both the genders are equally raped. This is So can you horrendous. imagine that? सुनने के The लिए, सुन के so-called, ऐसे हो रहा है. yeah, the so-called बाबा और quack who is saying कि मैं इसको बदल दूंगा, ये गे है तो मैं उसको heterosexual कर दूंगा, is himself doing anal rape on that gay boy. God. So imagine this. So all these So things you have happen. come पहले across such patients, such people in your practice. You've come across such people who had to undergo all this abuse. yes, but not many as of date. मतलब
आज के डेट में भी फिर भी अभी इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था. ओके लोबोटमीज वगैरह भी होते थे बहुत पहले, जैसे स्कल में आपका बर्र होल कर दिया, एंड they would think that the spirit of the homosexual or the spirit of the transgender will come out of this. पहले ये सब myths थे. अनबिलीवेबल या उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता था बहुत बार. द पर्सन वुड डाई और बिकम एक्चुअली मेंटली सिक, एक्चुअल मेंटल डिसऑर्डर्स होने लग जाते थे. तो ये सारी चीजें. एंड ओके उनको मेडिसिन भी काफी बार गलत गलत मेडिसिन दे देना, सिडेट करके रखना दिनों दिन, ऑल दीज थिंग्स हैपन. So this is nowadays conversion practices are more of the religious kind, I would say. इसका ओके मतलब ये है कि आजकल religious hammering बहुत होती है, जैसे कि this is a sin in our religion, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा, this is a sin, you will be going to hell, you will burn in hell. Similarly, uh, people can say कि कुरान में it is a sin, आप जहन्नुम में जाओगे. ठीक है. करेक्ट ये सारी चीजें तो बहुत बार लोग मान भी लेते हैं कि नहीं, भगवान या फिर नेचर जो है वो इस चीज के अगेंस्ट है, हमको ही सुरभि ऐसा क्यों बनाया गया. मुझे इसमें क्या लगता है पता, मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि कोई बात किसी से मनवानी हो तो गॉड का फियर डाल देना ये सबसे इजी तरीका होता है. जी स्पेशली व्हेन दीज गर्ल्स कम टू मी फॉर पीरियड्स, पोस्टपोन कर दो, प्रीपोन कर दो, पूजा है, रिचुअल्स है, कि भगवान है. सो भगवान का डर एक बार मन में डाल दिया तो वो डर के वजह से तो भी सुन लेंगे. ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, द इजीएस्ट tool बिल्कुल I know to I think to curb these what they feel is wrong and to treat that. बिल्कुल. So we've been, it's almost 45 minutes that we've been on live and a lot of people are with us still. एंड आई कैन सी दैट But पीपल आर स्टिल ऑनलाइन एंड yeah, लिसनिंग. काफी yeah. मतलब हाँ, नंबर्स मुझे इधर लगा उधर था हो ही रहे क्विकली हैं. करेंगे so that people will take the just the some the major points and leave, but they've been with us through the entire 45-47 minutes now. So quickly, maybe can you tell me the legal issues right now, what legal standing these people have in our in India? Yeah. So in India, you can say that Section 377 has been decriminalized, which means that legally also homosexuality has been proven to be, I mean, they have said that it is completely legal and there is nothing illegal about it. So you can have a same-sex partner, you can have a live-in relationship with the same-sex partner. Okay. You can, no, just a second, just a second. सो इन द मीन वाइल लेट मी टेल यू, जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस बताया कि जो एक मेरी फ्रेंड ने एक साइकेट्रिस्ट को फोन किया. सो जो भी लोग सुन रहे हैं, आई थिंक आज अगर कुछ लोगों ने ये सेशन सुना है तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे either share the link of this interview and know the basics and the correct knowledge about this, the entire spectrum, so that the if we tell hundreds of people today, these 100 people should forward this link to at least another 100 people, so the correct information will spread and we can create awareness. Yeah, should be go on. Yeah. So now Section 377 was brought by the British people who had criminalized homosexuality. Okay. So 60-70 years ago ब्रिटेन में ही इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, लेकिन इंडिया स्टिल कैरिड फॉरवर्ड सेक्शन 377 टिल 2018. एंड अभी 2018 में फाइनली उसको कंप्लीटली स्क्वॉश कर दिया गया है. एंड एज आई सेड, now if you see, your legal rights are you can have a relationship with your partner, you can live in with your partner. Okay. Okay. So Nowadays no more many banks, harassment by the police and the law. yes, not at all. Okay. You Wonderful. cannot be put behind bars for this. Wonderful. Yeah, no criminal action can be taken against you because it's not a crime. Okay. So all of this, and some of the banks have started giving allowance and started allowing holding joint accounts also. Okay. So earlier it was not allowed. अभी आप साथ में joint account भी hold कर सकते हैं काफी banks में. Okay. Earlier a lot of people were not allowing holding joint properties. वो अभी भी थोड़ा issue है कि joint properties आप hold नहीं कर सकते. Adoption and surrogacy, जो ये Yes. दो चीजें हैं, Very they important. are
are still an issue. We were thinking that अभी at least 17th October को जो केस रीड हुई थी उसमें adoption surrogacy को तो भी legalize कर देंगे. But frankly speaking, in India, adoption surrogacy is very difficult even for Even a heterosexual otherwise for couple. normal couples, yeah. Not normal, heterosexual couple. Heterosexual. Heterosexual. Everybody is I normal. correct. I correct that. Heterosexual. Yeah, because generally यही होता है बहुत बार मतलब Con- even when my friends also understand all of these conditioning. things. Conditioning. जी बिल्कुल. They understand all of these things. They are completely सब पता है ठीक है लेकिन मुंह से निकल जाता है बहुत बार क्योंकि वो Correct. ऐसे I ही agree. सुन के हुआ I है इसलिए. agree. But we I need to agree. correct it Yeah. because we are a part of this society. Yes. So adoption surrogacy is still a problem for heterosexual and homosexual people. Yeah, it's still a problem How for are the both. LGBTQ spectrum people having kids? What are they doing currently Yes. in India? Now currently एक अच्छी चीज ये है कि as a single person you can go for adoption. Like as a single mother you can go for adoption, as a single father you can go for adoption, as a couple you cannot. But All right. once you So there is adopt, still a loophole. दोनों भी Correct, पेरेंट्स sir. ही रहेंगे ना. Once you adopt, तो कपल तो पेरेंट्स ही रहेंगे ना. Correct. बट हाँ वो लीगल एडॉप्शन पेपर्स पे सिर्फ एक ही का नाम रह सकता है, दैट इज. और Coming to that, मतलब पांचवी छठवीं एक अच्छी चीज है which I wanted to ask you, being a gynecologist, बोलो. कि are females allowed IVF if they are single mothers? So IVF currently with the new ART law, there have been lot of issues right now. So coming to single mothers, right now जो ART law है उसमें allowed नहीं है, neither surrogacy. बट ये जैसे ये सेलिब्रिटीज लोगों ने किया ना, वो Yes. तब वो बिफोर द ART लॉ हो गया. अभी करंटली अभी देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी एंड स्टिल लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन. So Okay. still there is no clarity. Yeah. Yeah, because a So lot tell of me people one ask thing. me want children, Yeah. कि Yeah. ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कोई लूप होल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो सभी लोग बोलते हैं ना, फूक फूक के का एक एक चीज कर रहे हैं बिकॉज इट इन्वोक्स अ लॉट ऑफ पेनल्टी एंड लॉट ऑफ इश्यूज विद द गवर्नमेंट. बट अभी तो क्लैरिटी नहीं है व्हाट आई नो एज ऑफ नाउ. कमिंग टू योर थिंग दैट लीगल स्टेटस में जैसे एक सिंगल पेरेंट करके अडॉप्ट कर लिया, जैसे हेटेरोसेक्सुअल कपल्स में डिवोर्स होता है, ब्रेकअप्स होते हैं, ऐसे होने के बाद वो बच्चे का क्या होता है? Yeah, that is very true. क्योंकि यहाँ पे लीगल मैरिज का कोई बाइंडिंग नहीं है. नहीं है. नहीं है That's why. तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आएगा. तो इसमें आई रियली होप दैट द कपल इज सेन इनफ टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द चाइल्ड. एंड जैसे एक लविंग बच्चे को आपने इस दुनिया में लाया तो आपने एज अ कपल लाया और आप चाहते थे कि वो बच्चे का सब कुछ अच्छा हो, यू नो, be it education, be it health, be it growing up, be it having a good occupation, a good future. तो मुझे ऐसा लगता है just an advice to all the couples out there कि अगर आपने ये किया है as a single mother या single father adoption and you're handling the child as a couple, अगर वो बच्चा दोनों को पापा पापा बोलना सीख गया है या मम्मा मम्मा बोलना सीख गया है और वो वैसे ही बड़ा हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपके बीच में डिफरेंसेस आते भी है, आप सेपरेट होते हो, जो भी होता है, but you definitely remain parents to the child and you take care of the child equally. So same like heterosexual couples, like what happens Everything with is them? same, nothing is different. लीगली कुछ ये नहीं है ना चेंज, ये तो इमोशनल पार्ट हो गया, बट लीगली कोई Yes. वो बच्चे को लीगल Legally स्टेटस या हेयर का कोई इशू नहीं है. नहीं, लीगल स्टेटस पर में वही है कि जिसने अडॉप्ट किया वो वही सिंगल विल बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, नॉट द अदर पार्टनर. Okay, and now the other way around, like a grown-up LGBTQ, anybody, gay, lesbian, whatever, what is his legal standing, like a heir to his parents, whether he can inherit property, is it a legal, is he or she a legal heir to their parents, her parents? They are absolutely legal heirs to their parents, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है. They can inherit the property. Fantastic. So that's also good news. It completely depends on the parents actually. Yeah, that's parents true. अगर सपोर्ट है तो Otherwise, parents legally property they have देंगे. rights. Yes, Legally yes. they have rights. Of course, Absolutely. parents पे अगर उनकी खुद की self fund property है तो अलग बात है, but जी. legally they have अगर a claim over it. ancestral है और ऐसा कुछ है तो they can claim it. Legally same है जो बाकी persons के जैसे. Absolutely same. I am very
specific in not using the word normal. I thought I must correct that myself there, which came very naturally, just like that. Okay, so it's been 55 minutes, almost an hour. So quickly, can you tell me how we as a society can be a better ally to help you and to be inclusive and to create a safe environment for everybody? What can we do? Yes. So if I talk about doctors, I really hope that doctors Doctors, do yeah. not, yeah, do not have any bias in healthcare, Mm-hmm. because हम लोगों ने सबने एक ओथ लिया है कि हम सबकी मदद करेंगे, Yes. irrespective of anything, be it their caste, religion, color, gender, True. whatever. तो True. सिमिलरली हमने और दो वर्ड्स उसमें ऐड करने हैं कि हम जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी बिना देख के हेल्थ केयर देंगे, विथ फुल Yes. ऑफ आवर नॉलेज, वट एवर वी Yeah. हैव लर्न, Yeah. बिना किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन. तो ये जैसे डिफरेंट डॉक्टर्स के पास डिफरेंट टाइप के एलजीबीटी लोगों में हो सकता है कि आपको अप्रोच करे. कि जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो सकता है कि सबसे पहले एक लेस्बियन आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो, कि आपके पास पहले आए क्योंकि मदर को शायद ये नॉलेज हो कि नहीं, अगर ये बोल रही है कि मैं अट्रैक्टेड टू अनदर फीमेल हूँ, तो सबसे पहले कौन आता है डॉक्टर मन में? स्त्री रोग वाले. तो चलो स्त्री रोग वालों के पास लेके जाएंगे. तो दे मे कम टू यू सबसे पहले. Yes. तो गायनेकोलॉजिस्ट ने भी वही चीज समझानी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है Yes. भी तो Yes. एब्सोल्युटली कुछ भी गलत नहीं है. एंड आप आगे उन पेरेंट्स को एक क्वियर एफर्मेटिव साइकेट्रिस्ट को रेफर करिए. Yes. और बच्चे True. को भी ये सहारा दीजिए कि ओके बेटा, तुम गलत नहीं हो, रो मत, टेंशन मत लो. और पेरेंट्स को ये बताइए कि आप प्लीज इनके पास जाइए और आप भी समझिए कि आपका बच्चा गलत नहीं है. वो उतना ही आपका है जिस दिन आपके पेट में था, वो उतना ही आपका Yeah. है जिस दिन आप फ्यूनरल पायर पर होगे. इट्स गोइंग टू बी So, द सेम थिंग, या so उसके the बावजूद. gynec, yes, as a gynec, I have already taken that vow, and all of us must make that promise that we will create a safe, friendly, and a very non-judgmental space for all of us, all of them, everybody, not only for the LGBTQ, but for everyone. And not at least I, for one, do not. I never judge my. I at least try and create a very friendly and a safe environment for them so that they can really, open up and say. And I hope that happens with everybody. So, as a doctors, yes, we must do that. As a society, as you said, please accept that this is normal. This is not abnormal. It comes from the सिमिलरली time एक when you और are चीज मैं inside the ऐड womb. करना चाहूंगी कि जैसे ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, दैट HIV एंड STDs एंड STIs आर मोर कॉमन इन दी गे Okay. पॉपुलेशन और इन दी Okay. ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन. Mm-hmm, ऐसा mm-hmm. एक बहुत बड़ा मिथ है. अच्छा. एक्चुअली द रियलिटी इज कि ऐसा नहीं है. हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेस ना रहने की जैसे है. वजह अच्छा, I agree. से वो इशू है. Yes. Okay, but it is almost the same as in any other person. हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में जितना है उतना ही बाकी पॉपुलेशन में भी है. तो Yes. मैं चाहूंगी कि आप हेल्थ केयर एक्सेस अलाउ करेंगे तो बहुत जल्दी डिटेक्ट होगा, बहुत Yes. जल्दी उनकी ART शुरू होगी, या जो भी उनको जरूरत है, जो भी मेडिकेशन की जरूरत Yes. है, और इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू एड्स और एनी अदर मेजर प्रॉब्लम, एंड यू Yeah. कैन सेव सो मेनी लाइफ. Yeah. That's absolutely right. So let's at least I promise that from my as a gynaec I do make that commitment. Before we sign out, I just want to do a quick rapid fire, and most of these myths have been already busted by you. But a quick rapid fire with yes or no. Okay. The commonest myths I'm going to say, you will say yes or no, right? So the first would be this is acquired. No, This problem is acquired. not acquired. This is an abnormality. False. People do it to look cool, to show that you are different and gain some False. publicity. जबरदस्ती से नेचुरली दिखाने की कोशिश करते हैं. False. This is against the law of nature. Law is made to propagate the progeny. So this is against the law of nature. False. It happens because there is too much of exposure to social media. False. They are just blindly following Western culture. It is an Indian culture. It was never a Western culture. This False. came in one of my groups. People said, "अरे ये तो Western culture को influence कर."
इन्फ्लुएंस होके कर रहे वेस्टर्न हैं। कल्चर ने इनफैक्ट आकर यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी यस, क्रिमिनलाइज की थी, और उन्होंने फिर करेक्ट, खुद ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया, और हम इधर ही बैठे थे उसको लेकर। बैठे हैं। या फिर एक ने बोला अरे ये लोग बहुत वेले हैं, कुछ काम नहीं इसलिए ये सब कर रहे हैं, वेले लोग हैं, ऑफ कोर्स फॉल्स। निकाम टेकड़े मराठी में। अरे बाप रे। Then this is happening because of this issue is being given unnecessary highlights in movies and OTT platforms. That's why it's happening. फॉल्स, इनफैक्ट अभी जाकर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, तो उस रीजन से एटलीस्ट राइट नॉलेज फैल तो भी रहा है, जो पहले तो बहुत ही गलत नॉलेज फैलता था। This is unnecessarily hyped and it's really not needed, this hype. It is the need of an hour, of this hour. Yes, Absolutely yes. need of this It hour. must be discouraged. This culture must be discouraged. One of the First of all, it is doctors said that. not a culture, it is a very normal phenomena, and you cannot discourage it. It is still going to exist. Yes, So your true. discouragement is only going to cause more and more suicide. Yep. We see sudden surge in numbers only because of unnecessary glorification of the issue. False. You see these numbers because now there is more social acceptance and social awareness. Right, perfect. ये मैं थोड़ा सा इस पे ऐड कर दूं एक रोशनी पट से, Sure, टू sure, मिनट, sure. कि जेन एक्स जो है, ठीक है, मतलब जो 1965 ऑनवर्ड्स जो पैदा हुए थे, ठीक है, उनमें द परसेंटेज वाज 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैड कम आउट, ओके। ठीक है, उसके बाद जो मिलेनियल्स आए, मतलब हमारी जो जनरेशन है, true. उसमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग का ये था ऑफ पीपल कमिंग आउट, और अभी Okay. जो जेन जी है Mm-hmm. उनमें अभी 20.8% का कमिंग आउट रेट है, ओके। That's it. तो ऐसा एक कॉमेडियन है, ऐसी उस मजाक में उसने बोला था कि ये जिस तादाद से हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, Mm-hmm. बाय 2050 और 2060 100% पॉपुलेशन शायद विल कम आउट। दैट वाज अ जोक, Yeah, of course. बट द मेजर थिंग इज दैट आपको ये ट्रेंड जो दिख रहा है It's ऑफ a परसेंटेजेस, दैट इज yeah, बिकॉज देयर इज मोर it's a very सोशल encouraging अवेयरनेस, trend. Yeah. एंड Yes, that's पीपल, because of awareness and not unnecessary glorification. yeah, and people feel safe in coming out now because just as you said, your daughter is very understanding, my generation is very understanding. So obviously the coming generations are going to be more and more understanding. Right, right. Next, yes or no? It is just a fantasy. No, How can same-sex attraction last long? This will just fizzle out. no. I have seen couples together for 50, 60, 70 years also. That's right. That's nice. People just want to try something new and want to show off. No, what No, is there right? to show off? Exactly. But these are all um, or real comments, okay? Yeah, These are not made by me. yeah. I know, I know. And these people are just immature. Absolutely not. We are mature enough to accept that this is what it is. Okay, that brings me to the end of rapid fire and also the end of our session today because we've been here for more than an hour. And just like Coffee with Karan, I give you a hamper with Vaidehi and Coffee with Vaidehi hamper to you for answering all our questions so beautifully and making it so clear and easy to understand. I must even admit that मेरे भी बहुत सारे concepts आज clear हुए जो confusion था मन में. So thank you so much. Any parting thoughts before we sign out? So I guess I would just like to say that be a better ally. And एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपके सामने कुछ आपको किसी के साथ गड़बड़ होते हुए दिख रही है, जैसे पहले लड़कियों के लिए कहते थे कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो 10 लोग जाके खड़े हो जाएंगे, कि ऐसा ना हो। तो सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कि अगर कोई होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक कमेंट्स दे रहा है, कोई किसी को गालियां मार रहा है, छक्का बुला रहा है, गुड़ बुला रहा है, मीठा बुला रहा है, या किसी को एफिमिनेट बोल रहा है, मतलब लड़कियों जैसा है तू, या कोई किसी को मर्दाना बोल रहा है कि तू लड़कों जैसी है, या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपको एक ग्रुप में भी कोई डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में, और अभी जो आपने रैपिड फायर में जितनी भी चीजें सुनी उसमें से भी अगर कोई ऐसा कुछ कह रहा है, तो अगर आप एक सच्चे एलाय हो और आप वेल एजुकेटेड हो और आपको ये सारी चीजें समझ में भी आती है, तो आपने डेफिनेटली इस चीज का विरोध करना चाहिए। आपने इस चीज को बोलना चाहिए कि ये गलत बोल रहे हो आप, आपने गालियां नहीं देनी चाहिए,
आपने इस चीज के बारे में समझना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा ही होता है। एंड True. अगर आपका कोई अपना है तो प्लीज उसको घर जाके प्यार से समझाइए, लेकिन अगर ये पब्लिकली हो रहा है तो प्लीज पब्लिक में Stand up आप for वो them. इंसान बनिए जो खड़े रहकर यस इस चीज Yes. के अगेंस्ट बोले। और अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप खड़े होते हैं तो आप ये डरिए मत कि आप अकेले ही खड़े रहोगे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि ऐसी चीजों के लिए मैंने देखा है Look. एक दो लोगों को खड़े होते हुए। एक जन जब खड़ा होता है तो 10 जन उसको और आके ज्वाइन करते हैं, उसके ऊपर और 10 जन ज्वाइन करते हैं। True. तो ये चीज होती है, तो आप घबराइए मत, एक सच्चे एलाय बनिए और जितनी हो सके सबकी मदद करिए। Perfect, perfect. So, thank you once again, Surbhi. This was a fantastic session, and thanks to this lovely audience जो पूरे टाइम हमारे साथ थे. I will request everyone to even drop your comments or questions in the comments section so that we will keep answering all your questions. So feel free to answer whatever comes to your mind, and we'll be there to answer it. So it's time to say goodbye. Thanks once again, Dr. Surbhi. It was wonderful to थैंक यू have you today. very much, Auntie, for inviting me and Right. thinking of me for talking about You this were the topic. right person, Surbhi. Yes. I accept, Thank but I humbly accept. That's what. Chalo, bye bye. Say to it's time to say goodbye. Bye Bye. bye. Good night. Bye and thanks everyone.